सकते हो अपडेट। अब बेटा रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। सो साइन रूल, सो बेटा साइन रूल इज ए ओवर बी, ए ओवर साइन ए is equals to b over sine b. So you know this rule, and we apply this rule to find side. Okay, we use this form of sine rule when we have to find some side. ठीक है, just leave this question, ये भी हम करते हैं. This was a question, and there is another form of sine rule which is sine a over a is equals to sine b over b. So we use this form to find angle. ठीक है, तो साइन रूल के यही दो लाइक फॉर्म्स हैं. Sometime we use this form, sometime we use this form. The first form is used to find some side, okay, and this second form is used to find some angle. So you have a question in front of you. This is question number 1. The question is find the value of x. And what is x? X is opposite to this 70 degree. So this length is your x. Okay, bacho. So we use sine rule when we have two pairs. Two pair mean some side and opposite to the angle. Okay, opposite to that side, which is an angle. So this is a pair, bacho. Pair means one side, one angle. And this is another pair. One side and the other angle. Okay. Okay, bacho. Sorry. So we have two pairs, side and opposite angle, side and opposite angle. So beta, whenever you have two pairs, you always use sine rule. Please रटा मार लें बेटा इसको. Please याद कर लें. Whenever you have like two pairs, means to say एक side हो opposite angle हो, एक side हो opposite angle हो. So whenever you have two pairs, so you must use sine rule. And now you have to see whether you are finding some angle or side. तो बेटा it's so obvious. We are going to find this side. तो जब side find करनी होती है तो वो use first वाली rule. ठीक है. So how to apply the rule, beta? This a means this length, okay, x. So x over sine. What is the angle opposite to this x, which is 70 degree? So let's use 70 is equals to, use other side, which is 6. So 6 divided by sine. Which angle is opposite to 6? That is 30. So you use sine 30. So bring this on the other side, 6 sine 70 divided by sine 30. So bachcho, let's substitute this whole thing in calculator. Fraction 6 sine 70 divided by sine 30. So the answer is, ये मैंने क्या कर दिया, sine 70 divided by sine 30. So the answer is बच्चों 11.28. 11.28. So this length AC is going to be 11.28. और इसी को वो x कह रहा है. ठीक है बच्चों. So this was question number 1. This was question number 1. Question number 2. So let's say we have another triangle. This time it is P, Q, and R. This time we have P, Q, and R. Or let's call this angle B. This angle B 70 degree again. Not 70. Change कर लेते हैं. 65 degree. This is your question mark. X degree. Okay. So opposite to 65, this side is given. So let's call this side B 10, and opposite to this X, let's call this side B 8. So find angle X. So how to find some angle? As I said, you always see the pairs. So do we have pairs, bacho? Yes.
side and opposite angle and the other side and opposite angle. So do we have two pairs बच्चों? Please respond करें. आपके mic बेटा unmute हैं, ठीक है? So you have two pairs. Whenever you have two pairs, you always use sine rule. And Ayan Mufti is going to tell me, beta, which form do I use? First form or second form to find angles? हाँ बेटा बताएं please. Amima, beta, which form I use to find the side? The angle? Second one. The second one. Second one. Very good. So this was the second beta form. ये मैं से copy कर लेता हूँ यहाँ से. ये देखें. I am going to copy this, duplicate. यहाँ लेकर आए. So just remove this A and B. So angle A is your question mark, which is angle X, okay? And small a means the side opposite to that angle, which is बच्चों 8. Which is 8. And what's about the B? B is the, capital B is the other angle which is given, which is 65 degree. And what is this B? This B is opposite to 65, which is बच्चों 10 centimeter or 10 meter, whatever. ठीक है? So let's replace B with 10. So that's it. Now let's make the sin X subject, beta. इसके आगे please look at my steps. Please try to do the complete steps. ठीक है? ये सारे steps आपने करने हैं. You have to show these steps, okay? चलें. 8 sin 65 divided by 10. So the answer is, can you see? 0.72850. बच्चों, please remember this. Whenever you are doing these type of questions, when you want to take the inverse of sine and cosine, please write up to 4 decimals. मैं क्या कह रहा हूं? ये देखें बेटा, ये देखें please. I mean to say कि ये जो वैल्यू है ना, इसको आपने लिखना है up to 4 decimals. So 0.725. So now in order to find angle, you will take inverse. So bring sine on the other side, beta. So 0.7250. तो प्लीज बच्चों याद कर लें, we always write up to 4 decimal values inside sine inverse and cos inverse, okay? Sine inverse और cos inverse के अंदर 4 decimal की values लिखनी होती हैं. So how to find sine inverse? Shift sine inverse 0.7250, 46.47. 46.47 degree. Is there any confusion, बच्चों, in using sine rule? हाँ बेटा, मुस्तफा बताएं. तो ये बात दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे. साइन रूल. साइन रूल, ये देखें बेटा, ये साइन रूल होता है ना, इसको रीड करें. a over sin a is equals to b over sin b. We use this to find some side. ठीक है? Again, sine angle over side is equals to sine angle over side. We use this form to find angle. ठीक है? ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं और वैसे दिए भी होते हैं फॉर्मूला शीट में. So you have this question. If you look at the question, beta, we have two angles given, and opposite to these two angles we have some sides. But out of those two sides we have only like one side is given. ठीक है? वो कौन सी है? देखिए 6 given है, opposite to 30, but x is unknown. X is unknown. So जब भी दो pairs connect होते हैं ना, side और opposite angle, side और opposite angle, so you always use sine rule. ठीक है? अब ये देखो, साइन रूल आपने कौन सा यूज करना है, साइड वाला या एंगल वाला? पहले बताएं, क्या हम फाइंड कर रहे हैं? हम साइड फाइंड कर रहे हैं, एंगल फाइंड कर रहे हैं? साइड. वेरी गुड. तो बेटा ये देखो, ए की जगह पे आपने लिखना है अननोन. सो दिस लेंथ इज योर अननोन, विच इज एक्स. कैन यू सी? ओके. एंड बिलो एक्स you write sine a. That means sine opposite to that side. What is the angle बेटा? हाँ, कौन सा एंगल ऑपोजिट टू एक्स है? 70 है ना, तो आप लिखोगे साइन इज इक्वल्स टू, सो अदर साइड. कैन यू सी अदर साइड? 6 divided by which angle you will use in sine? 30. That's it. Bring sine 70 on the other side. इस पूरी, ये इसको यहाँ ले आए ना, simply substitute this whole value in calculator, you will get 11.28. So that means ये जो साइड AC है ना, AC is 11.28.
ठीक. Done? Yes. Next. Beta, type number 2. Can you see a question number 2? This time you have two angles and two sides, but out of two angles, one angle is unknown. हाँ बेटा, one angle is Unknown. unknown. अब हम क्या करेंगे? अब बच्चों हम क्या करेंगे? Again you can see साइड एंड ऑपोजिट एंगल, साइड एंड ऑपोजिट एंगल. ये साइन रूल की लाइक ट्रिक है ना. हम साइन रूल ओनली वी कैन यूज साइन रूल इन केस ऑफ पेयर्स. पेयर्स का मतलब क्या है? जो भी एंगल दिया हो उसके सामने वाली साइड दी हो, जो भी एंगल दिया हो उसके सामने वाली साइड दी हो. तो ऑब्वियस सी बात है हमने साइन रूल यूज करना है. अब मुझे बताएं बेटा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट या सेकंड? बताएं प्लीज, फर्स्ट और सेकंड. वी हैव टू फाइंड एंगल और साइड. Second. हाँ, हमने साइड एंगल फाइंड करना है ना. तो एंगल फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी. ठीक है. तो आपने कौन सा एंगल फाइंड करना था? एक्स. तो लिखें साइन एक्स डिवाइडेड बाय विच साइड इज ऑपोजिट टू एक्स, 8. इसके नीचे 8 लिख देंगे. इज इक्वल्स टू साइन 65 द अदर गिवन एंगल डिवाइडेड बाय द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, तो वो है 10. ये बात समझ आ गई? जी. Now divide 8 on the, like 8 multiply 8 on the other side. इसको उधर लेके जाएं. Simply substitute this whole value in calculator. So you will get 0.7250. ठीक है. In order to find x, you bring sign on the other side. जब हम sign को उधर लेके जाएंगे तो you will make sign inverse. So how to find sign inverse of this? आपको पता है shift sign calculator से. समझ आ गया बेटा? आगे समझ से. Very good. So one last question बेटा from sign rule. One last question. ये देखें बेटा. This time again we have triangle. ये देखें, B D E. So let's call it this time 10. Opposite angle is 70 degree. This is 6. No. 16. So students, this is the question. Find the angle X. Find the angle X. So, beta, if you look at X, do we have the side opposite to X? Is this side given? No. No. So that means we cannot find X directly. We cannot find X directly. But We what have we to- can find, which angle we can find? Can we find this angle? Yes. Very good. Do we have some side opposite to this angle? Yes. 16. 16. So बच्चों, आप क्या करोगे? You will first find this angle B. So I'm calling it Y, okay? So now look at the pairs. Do we have two pairs? Y and 16, 10 and 70? Just forget about X, beta. For now, just ignore X. So beta, do we have two pairs? Yes. Yes. So we are applying sine rule. So sine Y divided by which side you beta place in the denominator of sine Y? 16 is equals to sine 70 divided by 10 सेंटीमीटर. तो उमर बेटा आपको समझ आई बात की? उमर जी आगे से. बेटा हमने तो x फाइंड करना था. व्हाई आई एम फाइंडिंग y? सिर क्योंकि वो. हाँ, 16 टाइम्स साइन 70 डिवाइडेड बाय 10. सो द, अच्छा ये तो प्रॉब्लम हो गई है. प्रॉब्लम ये हुई है कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई है भैया. तो छुड़ाएगा. हम्म 16
sin 70 divided by 10। हाँ, अच्छा बच्चों, लेट मी चेंज दीज वैल्यूज। ठीक है, मैं क्वेश्चन तो वही रखूंगा बट मेरे से डाटा गलत लिख दिए गए। सो वी आई एम गेटिंग सम एरर इन कैलकुलेटर। तो हम ऐसे करते हैं, मुझे जरा ट्राई करने दें प्लीज। कॉन्सेप्ट बेटा सर आपको समझ आ जाएगा। जी जी। सर हम पहले 16 साइन 70 नहीं ले सकते, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको 10 से हम डिवाइड कर दें। ये देखें आपके मेरा साथ, ऐसे ही आंसर आया है। ये देखें, नहीं नहीं, आंसर तो मेरा भी आ गया है बट देर इज सम प्रॉब्लम। चले मैं कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर आप सोचेंगे कि सर ने क्यों चेंज किया है। चले भाई, लेट्स कंटिन्यू विद दिस वैल्यू। बेटा वट एवर डिवाइडेड बाय 10, तो आई नो यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस होल थिंग इन कैलकुलेटर एंड यू विल गेट 1.5035। एंड यू नो, सर ने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं वेयर टू फाइंड एंगल, सो यू ऑलवेज राइट वैल्यूज अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम देख लें। द प्रॉब्लम इज when you take sine inverse of 1.5035, you will definitely get some error. Check कर लें बेटा प्लीज। शिफ्ट साइन इनवर्स 1.5035। क्या बेटा, तो देर इज नो वैल्यू। ठीक है, ये कैलकुलेटर में ना, ये मेरे पास तो एडवांस कैलकुलेटर है। प्लीज अगर आप अपने अपने कैलकुलेटर में डालो तो यू विल गेट सम एरर। चेक करें बेटा प्लीज। सो दैट मीन्स सर दीज, एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, आई नो ना, एरर आएगा। तो मुझे बस थोड़ा सा डाटा चेंज करने दे, एक मिनट प्लीज। एक मिनट, मैं जरा एक चीज कर लूँ। इसको हम लिख देते हैं, लेट्स सपोज 9, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। साइन, हाँ ये ठीक है। सो आई एम जस्ट बेटा रिमूविंग दिस 16 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डायग्राम को, चलें बस ठीक है। वैसे तो डायग्राम को देखिए, ये 10 है ना, तो इसको मुझे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था बट इट डजेंट मैटर। मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाना है बेटा। ये देखें, आई जस्ट चेंज वन वैल्यू। ठीक है, अब देखें बेटा, साइन y ओवर 9, सो 9 साइन 70। मुस्तफा बेटा आपको समझ आया है, मैंने जस्ट 16 की जगह 9 लिख दी है क्योंकि मैं खुद से यस क्वेश्चन बना रहा था ना बेटा। खुद से क्वेश्चन बनाते हैं तो हमसे यस, नहीं बनते ना सम टाइम। क्योंकि 1.5035 would give us an error on the calculation. बेसिकली मैंने वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ठीक बनाया था लेकिन मुझसे वैल्यूज गलत हो गई थी ना। 9 साइन 70 डिवाइडेड बाई 10। ये देखें जी, 0.8। एग्जाम में भी ऐसा नहीं आएगा, टेंशन लेने। ठीक है, 8457। चले बेटा, दिस टाइम लेट्स टेक इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ 0.8457। शिफ्ट साइन इनवर्स, आंसर वेक्टर क्लोज। So y is equals to 57.75 degree. Beta, you write angles up to 1 decimal place. Okay. And all the calculations, final answer up to 3 significant figures. जो एंगल होता है उसको हम नॉर्मली 1 डेसिमल प्लेस पे लिखते हैं या 2 डेसिमल प्लेस में। ठीक है, और जो आपका फाइनल आंसर होता है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपने राउंड करना होता है। सो बच्चों दैट्स इट, दिस इज वाई, ओ सॉरी, हमें तो एक्स फाइंड करना था ना। So how to find x, Umar? How to beta find x, Umar? जी सर। बेटा x कैसे फाइंड करना है? दो एंगल्स आ गए हैं बेटा, तो एक्स, वन एटी सर में से माइनस। साइन, बेटा टोटल एंगल 180 होता है ना। हम्म दो एंगल्स आ गए हैं, उनको 180 में से माइनस करें तो x आ जाएगा। हम्म स्टूडेंट्स, इज देयर एनी कंफ्यूजन बच्चों? जी अमीमा जैनब। कुछ नहीं सर, मैं आंसर ही बता रही थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर एंड में सर जब Everything's good. एक्स और वाई की वैल्यू है कि बस 180 से माइनस करना है। हाँ देखें, x निकालना था ना, और तो x डायरेक्टली नहीं निकल सकता। स्टूडेंट्स, वी ठीक। कैन नॉट फाइंड x डायरेक्टली विद साइन रूल। तो हमने इनडायरेक्टली एक और एंगल निकाला है विद द हेल्प ऑफ साइन रूल, एंड देन आई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 टू गेट द रिक्वायर्ड एंगल। मेक सेंस बच्चों? Students, trust me, if you just keep taking classes at least on weekend,
अगर आप मेरे साथ जस्ट 2 आवर्स की 2 क्लासेस ले लें सैटरडे संडे, यू ऑल गेट ए स्टार। ठीक है, आप बेशक ट्यूशन ले रहे हैं कोई भी, मतलब आई नो का कुछ टाइम नहीं होता शाम को, जस्ट वीकेंड पे आप मुझे कहें सर आदिल हमारी आप फ्राइडे सैटरडे संडे 3 क्लासेस रखें 2-2 घंटे की, तो आप सारों के स्टार आएंगे। चलें बच्चों, नेक्स्ट। सो आई नो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साइन रूल में, ऐसे ही है? हाँ बेटा जाना बताएं प्लीज। No, sir. वेरी गुड जी। चलें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोसाइन रूल बच्चों, कोसाइन रूल। और साइन रूल कब लगाते हैं? व्हेन यू हैव टू पेयर्स, व्हेन यू हैव टू पेयर्स। टू पेयर्स मतलब एंगल के सामने साइड दी हो, एंगल के सामने साइड दी हो बेटा। सो नाउ लेट्स कम टू द अदर रूल, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, students please look at this triangle A B C. This is formula बच्चों and this is given in your formula sheet. We have only one cosine formula. ठीक है, A square, ये देखिए ना, opposite to this angle, this side is your A, opposite to this angle B, this side is your small b, opposite to this angle C, this side is our small c. ठीक है, so A square is equals to B square plus C square minus 2BC cos of angle। ठीक है, cos of angle। अब बेटा इसको प्लीज देख लें, इस फॉर्मूला को लिख लें प्लीज, नोट्स बनाए बेटा मेरे साथ साथ। चलें जी, नाउ हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला बेटा, हाउ एंड व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला। जस्ट लाइक द साइन रूल, देखें साइन रूल में क्या केसेस थे। केस नंबर 1 क्या था बेटा? केस नंबर 1 था कि आपको 2 पेयर्स दिए हुए हैं और आपने साइड फाइंड करनी है। और केस नंबर 2 क्या था? 2 पेयर्स दिए हुए हैं, एंगल फाइंड करना है। तो लाइक वी हैव ओनली 2 केसेस इन साइन रूल। ठीक है, वी हैव ओनली 2 केसेस इन साइन रूल। 2 पेयर्स दिए हो, साइड निकालनी हो, 2 पेयर्स दिए हो, एंगल निकालना हो। अब ये थर्ड जो है ये केस नहीं था, वी हैव 2 पेयर्स। ठीक है, हमने ये वाला एंगल निकाल के जो रिक्वायर्ड एंगल था उसको निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दिया। ठीक है ना, जस्ट लाइक द साइन रूल वी हैव कोसाइन रूल। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं बेटा, लाइक इसके कुछ केसेस हैं, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, वहीं से इसको समझते हैं। ठीक है, सो प्लीज लुक एट दिस ट्राइंगल। ये देखें जी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। आपका ये मैं ले लेता हूँ 6, यहाँ ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, and this middle angle between these two sides is, let's take it as 50 degree. So PQR, and opposite side is question mark। बेटा इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। मुस्तफ़ा उमर शानूर्स, बेटा बेटा ये जो फोन से आए हुए हैं ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप। मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ। बेटा जो मेरे सेटअप सामने बना हुआ है ना, ये सामने मैकबुक पड़ी हुई है, इधर आईपैड पड़ा हुआ है, ये मोबाइल फोन मैंने रखा हुआ है, तीनों डिवाइसेस पे जूम मीटिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्लास हो रही होती है उसको बेटा इंपॉर्टेंट लेना। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस दें, और मोबाइल से प्लीज ज्वाइन ना करें, मोबाइल से तो नजर ही नहीं आता। ठीक है ना, तो प्लीज सीरियस होकर इन क्लासेस को ज्वाइन करें, लैपटॉप से ज्वाइन करें, ताकि आपको वो स्क्रीन बड़ी नजर आए। बच्चों देखें, इस शेप को जरा रट्टा मारें बेटा। ये देखें, मेरे पास एक ट्राइंगल है, वी हैव 2 साइड्स। ये देखें बच्चों, वी हैव 2 साइड्स, वी हैव 2 साइड्स एंड द मिडल एंगल, द एंगल बिटवीन दोज 2 साइड्स इज गिवन। ठीक है, रट्टा मार ले बेटा, जब भी 2 साइड्स दी हों, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स का मतलब है दोनों साइड ज्वाइन हो रही है ना, दोनों साइड्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और उनके दरमियान वाला एंगल दिया हो, मिडल एंगल, एंगल बिटवीन दोज 2 साइड्स, और क्वेश्चन ये कहे कि फाइंड ऑपोजिट साइड, वो जो एंगल के ऑपोजिट साइड है वो फाइंड करें, तो प्लीज रिमेंबर दिस, यू ऑलवेज यूज कोसाइन रूल। दोबारा सुन लें, मैं कहता होता हूँ विक्ट्री साइन। बेटा ये विक्ट्री साइन है ना, ये देखें विक्ट्री साइन है ना। विक्ट्री साइन क्या होता है?
व्हेन यू हैव गिवन टू साइड्स, ठीक है, व्हेन यू हैव गिवन टू साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल दिया हो, ये थर्ड सामने वाली साइड फाइंड करवाए, सामने वाली साइड क्या करे, फाइंड करवाए। तो आप लोग क्या करते हो, कोसाइन रूल लगाना है, आपने याद कर लें। अब लगाना कैसे है, देखें फार्मूला शीट में ये दिया तो होता है फार्मूला, अब इसको हमने लगाना कैसे है बच्चों, इट्स सो सिंपल। देखें क्वेश्चन वाज फाइंड पी आर, तो बेटा आपने देखना है कि पी आर कहाँ पे है, भाई ये पी आर है। और सर ने कहा था कि जब भी दो साइड्स दी होती हैं, सर ने कहा था जब भी दो साइड्स दी हो एडजेसेंट, ये देखें दो साइड्स दी हुई हैं और दरमियान वाला एंगल दिया हो और सामने वाली साइड फाइंड करवाए, तो सर ने क्या कहा था, कोसाइन रूल लगाना है। अब बेटा कोसाइन रूल कैसे लगाना है, जो भी साइड आपने फाइंड करनी है ना उस पे यहाँ डालें स्क्वायर। ये देखें मैंने पी आर फाइंड करना है ना, तो लेट्स पुट स्क्वायर ऑन पी आर। ये देखें बेटा पी आर पे डालें स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेसिकली इफ आई कंपेयर दिस वैल्यू विद ए स्क्वायर, तो मैंने बेसिकली ए स्क्वायर लिख दिया बेटा, मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। अब मैं इक्वल टू के राइट साइड पे क्या लिखूंगा, देखें वी हैव टू साइड 6 एंड 8, इन दोनों पे स्क्वायर डाल के सम कर दें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस, ये देखें क्या लिखा हुआ है 2BC। इसका मतलब क्या है, 2 फार्मूले का है और जो वो साइड्स है ना 6 और 8 वो लिखें, 6 इंटू 8 इंटू कॉज ऑफ, कौन सी बेटा हम साइड फाइंड कर रहे हैं, ये साइड फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इसके ऑपोजिट एंगल सामने वाला, वो आपने एंगल लेना है ए। तो बेटा वो क्या होगा, कॉज 50। बात समझ आ गई, जो साइड फाइंड करनी है उस पे स्क्वायर डाल दें और फिर इज इक्वल्स टू दोनों साइड्स का स्क्वायर, हाँ बच्चों, फिर -2 वही वाली दो साइड्स इधर लिखनी है एंड देन कॉज ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द रिक्वायर्ड साइड, ठीक है। अमीमा एंड फरहान जमील, इज देयर एनी कंफ्यूजन बेटा, नो सर। वेरी गुड, No, sir. वेरी गुड जी, वेरी गुड। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा स्टूडेंट सुन लें, अगर बेटा आपका मंडे को टेस्ट हुआ गंदा, ठीक है ना, जस्ट लाइक द लीपर्स, लीपर इज इन स्कूल राइट नाउ, ओके, वो क्लास देने गए हुए हैं स्कूल, द अदर मैथ्स टीचर इज टेकिंग देयर क्लास जस्ट बिकॉज जिन बच्चों के नंबर आई डोंट रिमेंबर कि उनके 60 या 80, जिस बच्चों के नंबर 70% हाँ कम सर। 70%, हाँ चले मैं आपको ये कहता हूँ कि इफ यू गेट बिलो 60% मार्क्स तो आपका नेक्स्ट सैटरडे विल बी इन स्कूल, सो आई एम टेकिंग दिस क्लास ऑन नेक्स्ट सैटरडे इन स्कूल, अगर आपका मंडे को टेस्ट गंदा आता है तो। Sir, which topics were there for the test? बेटा ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल प्रॉपर्टीज, Okay. ठीक है। तो जो मैंने वर्कशीट भेजी हुई है प्लीज उसको प्रिंट करके सारा सॉल्व कर लें, तो आपका 100% टेस्ट हो जाएगा। चले बेटा सब्स्टिट्यूट करें इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -2 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स कॉज 15, ये देखें जी प्लीज देख लें बच्चों, 38.2924। So now let's take in square root. तो बेटा when you take square root and write final answer up to 3 significant figures. Answer. ये मैंने क्या कर दिया? Square root 38.2924. So बच्चों the answer is 6.19 up to 3 significant figures. ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं just for practice. Sir, Just- in the working, do you have to write the full form in the working? Yes बेटा, I just did 3 steps. ये आपने बेटा स्टेप लाजमी करने हैं, जो तीनों स्टेप्स हैं देखे No, ना। I know, but do you have to write all the decimal places in the working? Very good बेटा, for in working you have to like take 3 decimals so that you can get the exact answer, okay? But the final answer will be 3 significant figures. Okay. सर ये मेरा आंसर इस तरह नहीं आ रहा है। क्या मतलब ये कैलकुलेशन? अभी घंटे की क्लास है 2 घंटे की। बेटा वो देखते हैं ना, हम पहले फ्लो तो पकड़ लें। मुस्तफा क्या मिस्टेक किया आपने मुस्तफा? Sir, what I did first is that I added both 6 square and 8 square, which is 100 Okay. minus 96, which is the answer for ये जो 2 multiplied by this. फिर मैंने सब कुछ subtract करके मेरा 4 आया और 4 multiplied by cos 50 2 point something आ रहा है। बस समझ आ गया बेटा, इट्स बेटर टू राइट दिस होल वैल्यू इन कैलकुलेटर। ये बेटा पुट दिस होल थिंग इन कैलकुलेटर टू गेट दिस एग्जैक्ट Okay. इट्स एन एडवाइस, ओके मुस्तफा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेटा देखें, आई एम राइटिंग 1 and star. 1 star means I will give the same question
with different values. ठीक है, it's not a second type, it's the same question, just different values, ताकि हमें कोसाइन रूल लगाना आ जाए. So this time मैं डायग्राम थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ. Challenge. This time we have this 10, we have this side 12 centimeter, 10 centimeter, and this is A, B, C, almost same question. And then let's call this angle B 70 ले लेते हैं. ठीक है बेटा, find side BC. अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, जिस बच्चे को मेरी ये क्लास याद है कि सर ने कहा था विक्ट्री साइन, ये देखें बेटा, विक्ट्री साइन का मतलब क्या है, ये देखें, टू साइड्स आर गिवन, टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन बेटा. Two sides are given and their middle wala angle is also given. So when two sides are given, their included angle is given and we have to find the opposite side, mean third side. So easy बच्चों. You definitely use cosine rule. तो वो सामने लिखा हुआ है. Let's use the cosine rule. चलें, let's do it together. मुस्तफा बेटा दोबारा करें प्लीज. So BC square, ये देखें मैंने ये साइड फाइंड करनी है ना. So let's write square on it is equals to square of other two sides. 10 square And plus 12 square minus 2 times 10 times 12 times cos of opposite to the required side. Which angle is there? 70 degree. चलें जी, इस सारी वैल्यू को let's substitute this whole value in calculator. 10 square plus 12 square. sir, ये 161.9151 आ रहा है. जी thank you. I can times 10 times 12 into cos of. Very good, जी, very good. 161.915. That's it. BC square. So BC is equals to square root of. बेटा look at my steps. ये steps आपने सारे करने हैं बेटा. 3 तो steps हैं भाई. This question has almost 3 to 5 marks. तो आपने at least 3 steps तो करने होते हैं ना बच्चों. So the final answer is 12.7. That's it. 3 significant figures. ठीक है बेटा. 12.7 centimeter. So this was case number 1 when Sir Adil said when you have two adjacent sides, and their included angle is given and you have to find the opposite third side. तो आपने क्या लगाना है बेटा? कोसाइन रूल लगाना है. आपने क्या लगाना है? कोसाइन रूल. So this was type number 1 of cosine rule. So let's move on to type number 2 question. Type number 2 बेटा. Mustafa, Manum, Mustafa, Umar, Shanur, Umar, Zainab, Amima, Ayan, Mufti. Is there any question? Farhan, Fatma? No, sir. No, sir. Very good, beta. Very good. Chale ji, you can see a triangle. You can see a triangle, बच्चों, ABC. Interestingly, you have given all sides, beta. You have given all sides. This time it's 8, 9, 8, 10, 12. Centimeter, centimeter, centimeter. ठीक है? Beta, please look at this triangle. You have Ayan Mufti, you have all 3 sides given, beta. All 3 sides given. तो obviously, अब मुझे बताएं बेटा, examiner क्या पूछ सकता है? If you have all 3 sides, so examiner can ask any like angle. If you have all 3 sides, which बेटा इसमें missing क्या है? Angles. Yes, they can ask any angle, बच्चों. So let me write from. चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ. Let's find angle C. तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x डिग्री. x डिग्री लिख लेते हैं बेटा. So find angle x. So बच्चों, let me copy down this cosine formula. ये देखें, जब भी बेटा आपको 3 sides दी हों, please बेटा, when you have given all 3 sides and they can ask any angle to find, जब भी कोई एंगल फाइंड करना हो, याद कर लें कोसाइन रूल लगाना है. जब all 3 sides दी हो
and you have to find some angle, you will be using cosine rule. अब how to use cosine, how to like use cosine rule, ये देखें बच्चों. जो एंगल आपने फाइंड करना है ना उमर, उमर बेटा जो एंगल आपने फाइंड करना है, which side is opposite to that? Yes. दोबारा रिपीट करेंगे सर. बेटा which angle to find? This x. X. And which 8 side opposite. is yes, which side is opposite to x? That is 8. So beta you write Perpendicular. नहीं, हाशिम बेटा मजाक नहीं हो रहा. Please leave this class if you are not serious. It's not सर मैं perpendicular, okay? सर मैं It's not सीरियस हूँ सर. perpendicular. ये तो एक रैंडम सी ट्रायंगल है. सर मुझे लगा उसका सर पूछूं. सॉरी सर. नहीं, it's okay. सर जी जी. we will take cos inverse of the answer. Yes. तो बेटा जो एंगल आपने फाइंड करना होता है, the side opposite to that is 8. So you write 8 here, Umar. You write 8 in place of a. यहाँ पे लिखना है 8 square is equals to, that's it. Write the remaining Okay. sides at B and C. बस इतना सिंपल था बेटा. 10 square plus 12 square minus 2 into 10 into 12 into cos of A. Okay. And one more thing, बच्चों. Let's make students, let's make Umar, Mustafa, let's make cos A the subject. Bachcho, let's make cos A the subject. So do not waste your time, bachcho. Do not waste your time. Let's make directly cos A the subject. तो बेटा carefully देखें what I am doing here. Do not waste your time in using calculator. Simply make cos A the subject. At the end, I will put this whole thing in calculator. Minus 2 times 10 times 12 is equal to Hashim Ali Awan. बेटा ये आपको समझ आई है बात ये वाली? मैंने cos A को देखें सब्जेक्ट बना ली है. तो सर आप इसे सॉल्व करके फिर कैलकुलेटर में डालेंगे? क्या मतलब? मतलब आपने अगर कॉज ए को वो बना दिए है, क्या सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट, तो तो मैं इस पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालूंगा एंड आई विल राइट अप टू 4 डेसिमल्स. बेटा ये समझ आया आप सबको स्टूडेंट्स? जी सर. ये देखें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. एक स्टेप में बेटा सारा कुछ कैलकुलेटर में डालें. ये देखें 8 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय minus 2 times 10 times 12. मुस्तफा बुखारी एंड अमीमा. बताएं बेटा, समझ आ गया? जी सर. Yes, sir. So now you will take cos inverse of 0.75 is equals to A. उस ये मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? that was not A, that was X ना. तो ये ना एग्जामिनर माइंड कर जाए. इसको हम X लिख लेते हैं. X. चलें जी. शिफ्ट cos 0.75 डिग्री. तो ये देखिए बेटा x is equals to 41.41 degree. So this is your final answer बेटा. This is your final answer. बच्चों, is there any confusion? फरहान जमील फातिमा बेटा. No, sir. वेरी गुड जी, वेरी गुड. एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा. सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट डेटा. Question 2 again. So same question with different data. So here you have a triangle, bachcho. This time that is 12, 14, and 8. P, Q, R. Find smallest angle. So beta, who will use common sense? Mustafa Bukhari and Farhan Jamil. Which one is the smallest angle? 8.
नहीं um Sir, Q B. Q Sir, बेटा आई आई अंडरस्टैंड, बेटा आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। अयान मुफ्ती, बेटा और अयान, यस बेटा, अयान मुफ्ती, वी हैव थ्री साइड्स बेटा, Yes, sir. 8, 12 and 14. Which one is the smallest side? Uh, 8 from line Q to P. Yes, beta, this side is the smallest side. And please remember this, bachcho. The smallest angle is opposite to the smallest side. Mustafa Bukhari, got it? got it. And which one is the largest angle? Uh, the one opposite to line opposite Q to here. R. So, beta, this is 14. This is largest side. So, which angle P, is sir. opposite to? Yes, which angle is opposite to 14? P. P. Beta, ये बहुत important concept था. Please remember this. They don't directly say find angle R, find angle P, find angle Q. Sometimes they ask like this way, find the smallest angle, find the largest angle. So beta, smallest angle is opposite to smallest side, largest angle is opposite to largest side. Amima, Mustafa, Omar, Shanur. समझ आ गया बेटा? Yes, Yes. sir. Okay. That's it beta. Let's find angle R. Let's find angle R. So I'm going to call it R exactly. चलें हम इसको R ही कह देते हैं. ये लें जी, R find करें. So you have this cosine rule. चलिए बेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, डुप्लीकेट हेयर, एंड नाउ लेट्स फाइंड द एंगल आर। तो आर के ऑपोजिट क्या है बेटा? लकीली 8 ही है, मैं वहां भी 8 लिखा था मैंने। 8 square is equals to 12 square plus 14 square minus 2 times 12 times 14 cos of r. Okay, as I said, do not waste your time in finding the values. Simply make cause r the subject directly within a step. ये देखिए बेटा, within a step, even you can skip one step. ये देखिए मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर बेटा सब्जेक्ट बना लिया ना। मेकिंग सब्जेक्ट इज सो इजी बेटा, यू आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्लास आई थिंक 8। ये देखिए मैंने विद इन अ स्टेप कॉज आर को सब्जेक्ट बना लिया है। नाउ पुट दिस होल वैल्यू इन कैलकुलेटर बेटा, पुट दिस होल वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो शिफ्ट 8 स्क्वायर minus 12 square minus 14 square divided by minus 2 times 12 times 14. So definitely I will get 0.8214. Beta, you must write this value up to 4 decimal places. Before taking sine inverse, cosine inverse, you always write values up to 4 decimal places. Now take cos inverse. So cos inverse of 0.8214 is equals to R. ठीक है, इसका लें बच्चों आप लोग cos inverse. ठीक है मुस्लिम, shift cos answer, and the value I'm getting is R is equals to 34.78 degree. ठीक है बेटा, 34.8 सर degree. सिर्फ 34.8 डिग्री से लिख सकते हाँ बेटा वही लिखे है ना, ठीक है। चले जी, so beta Amima, beta you are going to summarize cosine rule for us. How many types of question we have in exam? बताएं बेटा अमीमा। सर 2 टाइप्स ऑफ बताएं ना बेटा, समराइज करें ना इसको प्लीज। सर नहीं समझ आया। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो बेटा समझ आ गया ना, मतलब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो आपको आता है ना। क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो सर वाह, मुझे पता है, वो आंसर भी मेरा चलें, ठीक है, आई नो हाउ टू सॉल्व दैट। ओके ओके ओके, मुस्तफा बुखारी से पूछते हैं, ही सो बेटा ही सो गुड। चलें अब बताएं 5 मिनट। जी सर। बेटा एक्सप्लेन करें कोसाइन रूल, हमने इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं? सो फार सर हमने देखे हैं कि cosine rule में when there are two adjacent sides and along with their including angle, तो and we need to find the opposite side,
we use cosine rule, which is equal to which is a square is equal to b square plus c square minus 2bc. It depends on what side you are or angle you are taking as the subject, and then you have to do 2bc in this case, minus 2bc in this case, cos a, because or whatever the side you need to find. In this case, let's take this BC one. So BC हमने ढूंढना है, तो फिर उसके बाद we simply type all of this into one calculation on the calculator, and after that we take the square root of the answer and we get our answer. Otherwise, दूसरे point में they can give you all three sides, Very and we have to find a separate angle. So that angle we attach it to cos. We shift all the terms onto one side, making the this angle the subject. We divide it all, and after dividing it all, we do it all in one step, and then we take cos inverse of the answer and get it. That's it. ये बेटा concept explain कर दें. What is mean by smallest angle, largest angle? ये क्या था मतलब? How to determine which angle is smallest, which angle is To largest? determine the smallest angle and the largest angle, they'll already have most likely given you at least some sides. Like for example, in this case, 8, 12, and 14. So we take the smallest side, which in this case is PQ or 8. We find the angle opposite to it, and that would give us our smallest angle. And then if we're told to find what that angle is, then we apply the cosine rule to it by making that angle the subject of the subject of the thing. Sure, Or can we the leave now? Beta, why? We are going to start the question, beta. Exam practice. Challenging. So now we are going to beta practice. चले बेटा, we have this worksheet. Okay. Come to this question number 15. So A, B, C, D is a pentagon, bacho. You have given sides A, B, B, C, C, D, E, A. Angles are also given. Show that BE is equals to 21.9 centimeters. So bacho, if you look at this side, if you have a topical beta, if you have MS topical, just go to May, June 17. Okay, just go to May, June 17. So you will find this question there. May, June 17. Anyways, how to find BC? Sorry, BE. आप बताएं बेटा मुस्तफा. BE or DE? बेटा BE. Okay, BE. इसको ढूंढने में we have the two adjacent sides with included angle. So after taking that including angle, we apply the cosine rule, which would be EB whole square is equal to 7 square plus 18 square minus 2 into 7 into 18 cos 115 degrees. After that, we 3 steps. That's it. So 7 square plus 18 square
minus 2 times 7 times 18 times cos 115 bracket close. So 479.4998. Now let's take square root on this, and I will get square root answer, which is 21.9. As I said, you have to write up to three significant figure, the final answer. So 21.897, this is calculation, and the final answer is 21.9. And beta, please do not use this rounded answer in the next step. In the next step, you are using unrounded answer, beta. ठीक है ना? ये original जो answers आ रहे हैं ना, you will use these answers while doing calculations. ये देखिए. Is there any confusion, beta, with BE part? No, sir. Very good. Come to next question. Angle DBC for 3 marks. Angle DBC. Where is DBC? Where is DBC? D to B to C. So, bachcho, we have to find this angle. Let's call it X. Okay. So, students, can you see two pairs? Bachcho, can you see two pairs? Opposite side and angle? Yes. Students, can you see two pairs, beta? So we can use sine rule. So in order to find x sine x over, sine x over 11 is equals to sine 28 divided by, students, you have to beta promise with me कि ये जो वर्कशीट है ये आप सारी करोगे, अदरवाइज आपका बेटा मंडे का टेस्ट बहुत बुरा होने वाला है. ये सारी वर्कशीट है, ये सारे कर लो, so that you can at least score 60 to 70% marks. I sent you both worksheet and marking scheme. (11 sine 28 divided by 16). The answer is, as I said, you have to write up to 4 decimal places. 0.3228. Now let's take inverse. So x is equals to sine inverse of 0.3228. So x is equals to sine inverse answer. So the answer is 18.83 something something. So x is equals to 18.8 degree. So this is your calculation for part B. Any confusion, beta? No, sir. This was your part B. Students, there is one more formula to find area. So मैं your notes बना रहा था बेटा. The last concept is finding area. I know ये आपको आता है area. So area of triangle. Just like the cosine rule, let's say if you have two sides, two adjacent sides, A, B, C. So you have two adjacent sides, let's say A and B, and angle is given X. So how to find the area? 1/2 AB sine X, okay? 1/2 AB sine X. When you have two adjacent sides are given, जब दो sides दी होती हैं, victory sign and included angle is given, how to find the area? 1/2 AB sine X. आपने I think ये पढ़ा होगा 1/2 AB sine C. So doesn't matter. मतलब तो आपको पता है कि use two sides and the angle between those two sides. ठीक है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए. Let's go back to the worksheet बेटा. Let's go back to the worksheet. This is the worksheet. ये इस क्वेश्चन को देखें. Who will guide me बेटा in last question? The perimeter of a pentagon is 62. Given that the area of the triangle is triangle BD is
109. Calculate the obtuse angle DEB. बेटा पेरीमीटर दिया हुआ है पूरे पेंटागन का. पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स. Given that the area of the triangle BDE is 109. ठीक है. BDE, where is BDE? Where is BDE? BDE. The area of this shape, this triangle is given, which is 109. Area is equals to 109. The area of this BD triangle is given 109, and the perimeter of full shape. Full shape means pentagon. Pentagon means 5 sides. 1, 2, 3, 4, 5. So perimeter means sum of all outer sides. Beta, sum of all outer sides. Perimeter is given. So that means perimeter beta क्या होता है? Perimeter is given, which is क्या था? 62 centimeter. So 62. So perimeter कैसे निकालेंगे बेटा? 18 plus 7 will be 25 plus 16. कैलकुलेटर से कर लेते हैं, मिस्टेक होगी. 7 plus 18 plus 16 plus 11. So we have 4 sides. So sum of 4 sides is 52. ठीक है बेटा? So हाँ, ED कैसे निकालेंगे मुस्तफा? 62 minus 52. So beta, 10. do you agree this is 10 using perimeter formula? Yes. That's it. Which angle to find, bacho? Which angle to find? Look at this. Which angle to find? DEB. DEB. Where is DEB? Where is DEB? DEB. You have to find, bacho, this angle. X, let's call it Y. So how to find this angle? Using this area. Since we know EB line and we know 10, we can apply the area formula. Area or 109 would be equal to 1 over 2 10 multiplied by 21.897 multiplied by the sine of y. Very good, जी. ये देखें बच्चों. From the previous part, we have this side EB. We have this side बच्चों EB. Okay. अब ये साइड मुझे दी हुई थी, तो ये दो पिक्चर्स क्यों आ रही हैं? अच्छा. Anyways, we have two sides, this and this, and included angle is given, which is like y, and the area is also given. तो चलें put करें. 109 is equals to 1 over 2 into 10 into 21.897. As I said, do not use rounded answer, beta. Do not use rounded answer. ये देखें please. ये देखें. Beta, I'm not using 21.9 here. I'm using unrounded answer. ठीक है? Exact answers. 897 into, oh, क्या हो गया? 897 into sine of y. Now let's make sine y subject. So 109 within a step times 2 divided by 10 times 21.897 is equals to sine y. बेटा आपने स्टेप सारे शो करने हैं, ठीक है ना? Fraction 109 times 2 divided by 10 times 21.897. So the answer is 0.9956 is equal to sine y. As I said, you have to write up to 4 decimals. ये तो मेरे आगे आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? ये ले बच्चों. So now let's find inverse, sine inverse of
0.9956 is equals to the y. So shift sine inverse 0.9956. So the answer is y is equals to 84.6 degree. Any confusion, bacho? You can also compare your answers, beta. You have the marking scheme in your WhatsApp group. You can compare your answers, बच्चों. ये देख लें. मुस्तफा समझ आ गया? मैम ने कहा था कि अटेंडेंस की पिक्चर भेज दें बेटा. तो मैम हादिया वाज आस्किंग अबाउट द अटेंडेंस. तो मैं अटेंडेंस की भी पिक्चर भेज दी मैंने. ओके. फरहान बेटा हो गया क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम फरहान एंड उमर? नो सर. वेरी गुड जी, वेरी गुड. चलें. नाउ बेटा कम टू द क्वेश्चन नंबर. सर ऊपर दोबारा समझा देंगे जरा. अच्छा, कौन सा पार्ट? सर ये पार्ट 2. नहीं ऊपर ला ऊपर ला. ये जो मैंने बाद में किया था. हाँ जी. हाँ देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था ना लास्ट पार्ट में. हाँ जी सर, ये मुझे भी नहीं समझ आया. हाशिम हाशिम सुनो ना. हाशिम हाशिम देखो, इस पूरी डायग्राम का ना बेटा आपको दिया हुआ था पेरीमीटर ना. पेरीमीटर क्या दिया हुआ था आपको? 62. एक बार पढ़ लो ना, ये लो. एक बार पढ़ लो, ये पढ़ो. द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन इज 62. 62 centimeters, given that the area of triangle BDE is 109 centimeters square. Calculate the obtuse angle DEB. DEB. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, मुझे ये भूल ही गया था ऑब्ट्यूज में. बट ये सारी बातें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए बच्चों, ये देखो. दिस वाज 7 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 11. तो बेटा इन सारों को ऐड करो ना, तो यू विल गेट 52. So the perimeter of the full shape is 62 and sum of these four sides is 52. So 62 minus 52 is 10. So can we say, Hashim, beta, can we say this side will be 10? Yes, sir. Very good, जी. अच्छा, next. बेटा we found this BE in some previous part. ये मैंने बेटा पहले फाइंड किया हुआ था ना. ये देखो जरा. ठीक है. तो मैंने बेटा ये तो फाइंड किया हुआ है. ये फाइंड किया हुआ मैंने 21.897. So now just focus on this triangle. So beta, we have to find this angle. You know, the question was BED find करें. तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है ना. जी. अब आपको बेटा फार्मूला आता है ट्राइंगल का. ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स. ये याद है ना फार्मूला, ये वाला. जी सर. And beta, area of this triangle DEB is given 109. So 109 is equals to 1/2 into A is 10, B is this value into sine of angle between them, which is Y. So bring 2 on the other side, divide this whole thing on the left side, and then put this value in calculator. You will get 0.9956, and then take inverse to get your angle. So this was the required angle. Okay, beta. Yes, sir. And beta, the problem is this is not the answer. The question is find obtuse angle. So beta, obtuse angle lies between 90 and 180. So beta, this is below 90. Okay. So how to find the pair of obtuse angle? So both simple hai. Whatever you have found, simply subtract this angle from 180. Okay बच्चों, simply subtract this angle from 180. अभी आप याद कर लें. ठीक है मुस्तफा, इसको बेटा अभी याद कर लें. इसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे. अभी हम बस. ठीक है. So how to get the obtuse angle? Whatever your answer is, subtract this angle from 180. So this is your obtuse angle, 95. Beta, even if you look at the marking scheme, you will not have this as your final answer, beta. This is not your final answer. Your final answer is 95.4. अगर उसने ये ना कहा होता ना बच्चों, अगर वो ये ना कहता, वो सिंपली कहता find DEB. Okay, calculate angle DEB. 84.6 ही होता आंसर. Yes. Then this is your answer. But in case of obtuse, you will subtract this angle from 180.
ठीक है, हम आगे चलते हैं बेटा। मैं चाहता हूँ कि आप बोर ना हो ना, फिर आप कहेंगे सर आप अच्छे बच्चे हैं, आप एटलीस्ट डेली क्लासेस में तो आ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं। फिर बेटा आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर लें, तो कल हम बेरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, इसी के अंदर बेरिंग वाले सवाल। सर प्लीज सर आप रिकॉर्डिंग तो भेज दें सर, आप भेजते ही नहीं है। अभी तो आपने क्लास ले ली है ना, रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए आपको, मुझे समझ नहीं आ सर रहा। वो फिर भी ना बाद में मतलब अगर कोई चीज ना समझ आए, कोई क्वेश्चन, तो यस फिर आप सर, इफ रिकॉर्ड। पॉसिबल मुझे भी रिकॉर्डिंग चाहिए क्लास की। ठीक है ठीक है ठीक। सेम हियर सर। हाँ बेटा, ग्रुप में सर प्लीज। क्या कहूँ, सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वैसे कोई भी क्वेश्चन पकड़ लें, चलें ये कर लेते हैं, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा बेटा। ये देखें क्वेश्चन 25 है, रैंडम क्वेश्चन है। PQRS is a trapezium with PQ parallel to SR and SPQ is 90 degree. SPQ is 90, ठीक है जी। Calculate PS. Where is PS? Okay. So simple. Using, ये देखिए राइट एंगल है बेटा, तो राइट एंगल में क्या यूज करना होता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। याद है बेटा हाशिम? यस सर। PS चलें। अब मुझे बताएं, ये देखो जरा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज योर राइट ट्राइंगल फरहान जमील, and we have to find PS. So here we have the angle 58, opposite to 58, this side is perpendicular. आपका फेवरेट नंबर क्या मैं कहूँ, साइड, हाशिम। Opposite to 90, this is what? हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। Remaining बेटा रिमेनिंग साइड विल बी बेस। तो बेस फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो क्या यूज करूं? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। हाँ बच्चों, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बेटा, प्लीज बताएं। सही कह रहे हैं सर। ये आप लोगों ने करना है, अपना दिमाग यूज करना है बेटा। तो 15 cos 58 is equals to 7.95. This is my PS. Okay, this is my PS using simple sine, cosine and tangent, वो some people have वाला, ठीक है ना। Calculate the obtuse angle. Again beta, they said obtuse. They said obtuse. Obtuse means greater than 90, less than 180. Greater than 90, less than 180. So where is SRQ? Bacho, where is SRQ? SRQ, we have to find this angle. I think so we can calculate this angle. Yes. Hashim, do we have this angle? जी सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट? Beta, do we have this angle? यस सर। Yes, sir. How, beta, how do we have this angle? सर जी फुल एंगल 90 होता है ना बेटा, पैरेलल लाइंस है ना स्टूडेंट्स, दीज आर पैरेलल लाइंस। सो इफ दे आर पैरेलल लाइंस, दैट एंगल इज 90। डोंट यू थिंक दिस एंगल इज आल्सो 90 बच्चों? यस सर। सर 32। 32, हाँ, तो 90 में से 58 माइनस करा तो क्या आया? 32। 32। सो वी हैव टू फाइंड विच एंगल? SRQ, ये एंगल फाइंड करना है। साइन रूल और कोसाइन रूल, हमजा बुखारी, सॉरी मुस्तफा बुखारी बेटा, साइन, कोसाइन रूल। वेरी गुड भाई, देखें। नहीं, साइन साइन साइन। हाँ साइन रूल, देखिए बेटा, दो दो पेयर्स बन रहे हैं ना, साइड ऑपोजिट एंगल, साइड ऑपोजिट एंगल, तो भाई क्या करना है? ऑब्वियसली बात है, साइन रूल लगाना है ना। तो अननोन जो होता है ना बेटा, उसको एक्स कह दिया करें, वाई कह दिया करें, इट्स अप टू यू। चलें जी, लगाएं। साइन एक्स ओवर 15 इज इक्वल्स टू साइन 32। हाशिम अली अवान, समझ आया बेटा? मैंने रात को यस क्लास सर। इसलिए रखी, मैंने कहा रात को आपके प्रोग्राम होते हैं, वीकेंड पे कुछ डिनर वगैरह होता है, फैमिली के साथ घूमना फिरना, तो मैंने कहा चलो दिन कोई क्लास लेके आपको बेटा फ्री कर दूं, ठीक है। सर कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी ना? कल भी इसी टाइम पे होगी, ठीक है ना, चिल करें। ठीक फिर है। सुबह सुबह अल्लाह रखे हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज किधर, इधर ही रुके हैं, ये कहाँ कौन अल्लाह हाफिज कह रहा है? ये मुस्तफा बुखारी है। बस स्लिप ठीक ऑफ है बेटा, मैं मंडे को जिस बच्चे का टेस्ट 70 मार्क्स से कम हुआ ना, 70% से, सैटरडे रेगुलर में को 60 का उसको बेटा मैंने क्लास स्कूल में लेनी है।
सैटरडे संडे, ये याद रखिएगा अपने। सर स्लिप, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, ये सर खैर। सर आपने तो 16 नहीं कहा था सर। क्या क्या क्या? सर ने मुझे 50 कहा था। अच्छा तो मुझे सर चलो, आपने 60 कहा था। आई विल सर मंडे, डिसाइड, लेकिन फिर मंडे पर आप हमारे तो पिछले इम्पॉसिबल है। टेस्ट के सोर्स। नहीं बेटा, टेस्ट तो मैं कल भी लाया था, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मंडे को आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। सही। टेस्ट मैंने चेक किए हुए हैं आप सबके। साइन इनवर्स, सर आप टेस्ट बड़ा मुश्किल बनाते हैं। वेयर इज फरहान जमील? फरहान जमील गॉट 27 मार्क्स, लाइक फुल मार्क्स इन द प्रीवियस टेस्ट। वाह सर। सर मेरे कितने आए? मैं बेटा मंडे को बताऊंगा, अभी बस अगले टेस्ट की तैयारी करें, बहुत मुश्किल चैप्टर है बेटा ये। शिफ्ट साइन। सर प्लीज थोड़ा आसान सा टेस्ट देना सर। अच्छा चले, मैं कोशिश, ये क्या हुआ? शिफ्ट साइन 0.7226, x इज इक्वल्स टू 46.27 डिग्री, तो मैं इसको 3 पे राउंड करता हूँ। एंगल जो होते हैं ना, वो अप टू 2 डेसिमल्स पे भी एक्सेप्टेड है। ये लीजिए। सो डन विद फर्स्ट 2 पार्ट्स। डन बेटा। ओ Sir, सॉरी, don't you have to bank it? यस 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 यस, सॉरी बेटा, ये देखें 4 में से 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कह रहा होता है, तो ऑब्ट्यूस बेटा होता है 180 माइनस दिस। वो क्या, वो कहाँ गया? 180 माइनस आंसर 133.7 डिग्री। या 134 को राउंड ऑफ कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्या मतलब 130? नो 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 बेटा, 133.7 डिग्री लिखिए। सही। नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये बेटा सर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। आपका आखिरी क्वेश्चन है सर। अच्छा, ये कौन बोला था? उमर। चले बेटा, हाशिम। हाँ ठीक है। देखिए बच्चों, बात सुनिए। सर ये मैं नहीं था, ये उमर मिर्जा था सर। आई नो आई नो आई नो। अब बच्चों देखें, ये वर्कशीट आपको मिली हुई है, ठीक है? आज और कल बैठ के ना इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और मंडे को टेस्ट दें, ठीक है बेटा? प्रॉमिस। जैनब, उमर, शानूर, ओके सर। मुस्तफ़ा, मानूम, फातिमा, फरहान, अमीमा, अयान। प्रॉमिस बेटा? जस्ट रेज योर हैंड लाइक दिस। जी सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Office, हाफिज। सर वैसे वापस थोड़ा वो नहीं सर। होना चाहिए सर, मतलब जो क्लास लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल जरा। मार्क्स सर थोड़े। मैं इस पे कोशिश करूंगा, आप मजाक करें लेकिन मैं सीरियस हूँ, चलें करेंगे नहीं इसको। सर नहीं हम नहीं भी सर, सीरियस मैं नहीं है सीरियस हूँ, सर। प्रॉमिस मैं सीरियस हूँ सर। ठीक है, नहीं नहीं करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। ओके। थैंक यू सर। ओके बच्चों, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। फिर हाफिज।